Hello everyone. For our English grammar lectures, we finished up till now most of the basic topics we finished. We finished 8 parts of speeches, that is we finished verbs, we finished adverbs, adjectives, preposition, conjunctions, then noun, pronoun, and then we finished even about tenses, right? Present tense, future tense, past tense. Apart from that, we finished determiners also. Last topic for which I uploaded video related to English grammar was determiners, right? So today from this video we will start with one new topic, and that is kinds of sentences based on meanings. Okay, that is meanings के base पर sentences के kinds. Okay, now which are those kinds? There are 5 total kinds of sentences. For example, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूँ like what is your name, तो ये जो सेंटेंस बोला मैंने वो क्या था? We can tell it was question, right? And if it was question, अगर वो क्वेश्चन था तो उसको एक परफेक्ट नाम दिया गया है कि what kind of sentence it was. It was interrogative sentence, right? वो interrogative sentence था, right? Then say like suppose one more sentence I'll give you, that is for example, that is I am teaching in AB school, right? I am teaching in AB school. So ये जो सेंटेंस है वो क्या है? ये जो सेंटेंस है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ओके, मैं क्या करती हूँ और मेरा प्रोफेशन क्या है वो मैंने बताया. आई एम टीचिंग इन AB स्कूल, राइट? मतलब दिस सेंटेंस गिव्स अस वन इंफॉर्मेशन. ओके, आई एम टीचिंग इन AB स्कूल gives us one information. Now either you tell I am teaching in AB school, or I can tell I am not teaching in YZ school, right? Now see, first sentence which I spoke, I am teaching in AB school. Okay, मतलब ये सेंटेंस हमें एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है कि मैं AB स्कूल में पढ़ाती हूँ, राइट? दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बोला? आई एम नॉट टीचिंग इन YZ स्कूल. सो आई एम नॉट टीचिंग, दूसरा सेंटेंस जो है वो हमें नेगेटिव मीनिंग बता रहा है. यस और नो? अवर फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस हेयर इट इज डेक्लरेटिव. ओके, नाउ डेक्लरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो जो मैंने ये 2 सेंटेंसेस आपको एग्जांपल्स दिए, आई एम टीचिंग इन AB स्कूल, आई एम नॉट टीचिंग इन XY स्कूल. ये जो 2 मैंने एग्जांपल्स दिए, ये दोनों एग्जांपल्स इसके रिलेटेड है बिकॉज दोनों सेंटेंसेस ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, राइट? नाउ जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, एक फर्स्ट सेंटेंस गिव्स अस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज आई एम टीचिंग इन AB स्कूल. सेकेंड सेंटेंस गिव्स अस नेगेटिव इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट टीचिंग इन AB स्कूल. Understood what it is? First kind of sentence is declarative, and in declarative means sentence which provides simple information either in negative sense or in positive sense. Okay, if I talk about positive sense, positive or affirmative both are same. Okay, we can tell affirmative sentence also, we can tell positive sentence also. से लाइक सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो और क्वेश्चन पे ब्रैकेट में दिया गया हो कन्वर्ट इट इनटू अफर्मेटिव. ओके, नाउ अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना दैट मीन्स पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. अंडरस्टूड? सो अफर्मेटिव इज पॉजिटिव सेंटेंस एंड द सेकेंड टाइप ऑफ डेक्लरेटिव इज नेगेटिव, providing information either in positive way or in negative way. Okay, clear meaning of declarative? Let us go with interrogative. As I asked you question, what is your name? So that means what is your name and question mark. जब question mark use होता है, that sentences can be told as interrogative sentences, right? So interrogative sentences is
those sentences by which we ask questions, जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या? से प्लीज शट द डोर व्हाइल यू गो आउट। प्लीज शट द डोर व्हाइल यू गो आउट, दैट इज कृपा करके डोर बंद, दरवाज़ा बंद कर देना जब आप बाहर जाओगे। ओके, वो जो प्लीज वर्ड बोला, व्हाट इट शोज, it shows that the whole sentence comes in requesting form, कि मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज शट द डोर, राइट। सो वो जो रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, दोज सेंटेंसेस आर कंसिडर्ड एज imperative sentence, okay? Or else if I tell you keep quiet, now what is keep quiet? keep quiet मतलब मैंने आपको एक कमांड दिया, मैंने आपको ऑर्डर दिया है। कमांड्स, keep quiet, don't talk, ओके। तो वो जो ऑर्डर टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी इम्पेरेटिव में इंक्लूड होते हैं, ओके। इफ आई टेल just go to doctor and prescribe some medicine for you, okay, see मैंने क्या बोला? So okay, if I speak still more clearly, it's better you should go to doctor, okay, it's better you should go to doctor, that is अच्छा रहेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। मतलब select suppose if I am talking with my friend or my friend is suffering from fever, तो एक तरह से एडवाइस हो जाती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। एडवाइस, अंडरस्टूड, किसी को सजेशन देना, किसी को एडवाइस करना, ओके। तो वो जो चीज़ें हैं, इट कम्स इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अंडरस्टूड। सो वंस अगेन, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस बाय विच वी कम टू नो आइदर दैट सेंटेंस इज request or it is command or order or it is advice or it is suggestion, understood? So these are imperative sentences, okay. Next one is exclamatory, like I told, if I give you one example, bravo, we won the match, okay, that is हम एक खुशी प्रकट कर रहे हैं कि yes we won the match, right। तो वो जो ब्रावो है वो एक खुशी एक्सप्रेस करता हुआ वर्ड है, अंडरस्टूड। और वो जो वर्ड है दैट यूज एक्सक्लामेशन साइन, एक्सक्लामेशन साइन, गॉट इट, दिस इज एक्सक्लामेशन साइन। सो एक्सक्लामेशन का जो भी सेंटेंस होता है, आइदर इट गिव्स अ सरप्राइज, ओ व्हाट अ बुक इट इज, ओके। अब मैंने यहाँ पर बोला ओ व्हाट अ बुक इट इज, तो आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन कि ये बुक कैसी है, मैं तो ये बोल रही हूँ ओ क्या बुक है ये, अंडरस्टूड। दैट इज मुझे बुक अच्छी लगी, उसके लिए एक एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ कि क्या बुक है, दैट इज द विच थिंग आई लाइक द मोस्ट, फील हुआ मुझे, इसके लिए मैंने ऐसे एक्सप्रेशन दिए। सो एक्सक्लामेटरी में फीलिंग्स ज़्यादा शो होती है, understood। Now feelings can be any, either you talk about anger, you talk about happiness, you talk about some sorrow, you talk about some surprise, you talk about some shocking news। उस वक्त जो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, लाइक किसी ने हमें कोई बात बताई तो हम सडनली बोलते थे क्या बात कर रहे हो, ओके। तो अगर हम बोले क्या बात कर रहे हो, तो वो जो क्या बात है और क्या बात कर रहे हो, वो हम उसे पूछ नहीं रहे कि क्या बात कर रहे हो, हम उसको एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं बिकॉज वी बिकम सरप्राइज फ्रॉम व्हाट ही टॉक्ड विद अस, अंडरस्टूड। सो दैट एक्सप्रेशंस कम्स इन एक्सक्लामेटरी। देन मूविंग अहेड विद ऑप्टेटिव। सी ऑप्टेटिव ज़्यादातर आप लोगों को पूछा नहीं जाता आपके सिलेबस में, बट देयर इज वन काइंड। से लाइक सपोज यहाँ पर तो सरप्राइज, जॉय, एंगर, फीलिंग एक्सप्रेशंस जो है वो, लेकिन मान लीजिए इफ़ यू आर विशिंग समवन गुड मॉर्निंग, एक विश है, राइट।
if someone wish happy birthday to you, and if someone wish may God bless you, वो जो आशीर्वाद देने के जो आइडियाज, जो लाइंस बोली जाती हैं, दोज लाइंस ऑल्सो गो ऑन विद एक्सक्लेमेशन मार्क ओनली, बट एक्सप्रेसेस अ विश, जो इच्छा होती है वो जब प्रकट करते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं. I hope you people understood meaning of exclamatory and optative. Once again, exclamatory shows us feelings and expressions, that is surprise हो गया, खुशी हो गई, anger हो गया, या फिर shocking news कुछ सुनी हमने, ओके, या फिर हम बहुत ही दुखी हैं, तो उस वक्त जिस तरह की हमारी मतलब खुशी हमारी जिस तरह की भी वर्डिंग्स होती है, दैट कम्स इन एक्सक्लेमेशन. लेकिन हम किसी को भी विश करते हैं, गुड मॉर्निंग बोले, उसके पीछे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. ओके, इट इज़ नॉट दैट कि इट इज़ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस. सी, गुड मॉर्निंग में क्या फीलिंग्स, आइदर ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस, उसमें कोई फीलिंग नहीं है. बट देन टू इफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज यूज्ड, वहाँ पर विश करने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो भी ऑप्टेटिव में काउंट होते हैं. अंडरस्टूड? मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लाइफ, अंडरस्टूड, लंबी उम्र रहे, ओके, लॉन्ग लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट गुड रिजल्ट. एक विश है हमारी कि भगवान करे आपका रिजल्ट अच्छा आए. सो वो जो विश टाइप के सेंटेंसेस हैं, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगेगा इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप, बट इट विल बी कंसीडर्ड एज ऑप्टेटिव, नॉट एज एक्सक्लेमेटरी. अंडरस्टूड? ओके, सो दीज आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग्स. ओके, so just go through this whole table and understand it properly. Okay, declarative, either positive information or negative information comes in declarative. Interrogative will have this sign at the end, right, and the whole sentence will show you question, right. Imperative will be those sentences by which we come to know about request, commands, advice or suggestion or order, etc. And exclamatory and optative. Please just, I'll put pause for 1 minute for my speech. Just go through with these kinds of sentences, and after you go through with proper explanation which I gave you in this video, I'll be giving you certain exercises also related to these all topics, so that you can try to do those topics as well in your notebook. Just go through it, please. Thank you.